کراچی میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلشن حدید، گلستان جوہر، لیاری، شہید ملر ٹیپو سلطان روڈ اور نارتھ ناظم آباد میں برسات۔ ملیر، ڈیفنس اور کلفٹن کالا پل میں بھی ابر رحمت۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی بند، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ سکھر، میرپور خاص میں بھی بادل برس پڑے۔ حیدرآباد میں بارش سے مدرسے کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 20 سے زائد بچے زخمی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں دورہ، میونسپل سروسز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر کے الرٹ رہنے کا حکم۔ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، امریکہ اور اسرائیل میں اتفاق ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کا بڑا دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ بھی کر لیا۔ جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن اور تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ کے جو باشندے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہیں کئی نامعلوم ممالک پناہ دیں گے۔ متحدہ عرب امارات، مصر سمیت 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ کی پٹی پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے۔ عرب اتحادیوں نے فلسطینی اتھارٹی کے تحت 2 ریاستی حل کی تجویز دے رکھی ہے۔ خفیہ کال میں امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر اسٹریٹجک امور بھی شریک تھے۔ دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فوج کی بے سر و سامہ افراد پر وقفے سے بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے، 300 کے قریب زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 56,259 تک پہنچ گئی، 1,32,460 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے امداد پر قبضے کا الزام عائد کر کے غزہ کو امداد کی فراہمی 2 روز کے لیے روک دی۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کے ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کردار پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات مزید بڑھانے کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسرا رابطہ ہے۔ ٹرمپ نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کے فیک نیوز دینے والے رپورٹرز کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں خطاب، کہا یہ شیطانی ارادے رکھنے والے برے لوگ ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے امریکی معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ ٹیرف لاگو کر کے معیشت کو کئی ٹریلین ڈالرز کے نقصان سے بچایا۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو باہر نکال رہے ہیں، ان لوگوں میں جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ ایران سے نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتے، ان کا مقصد امریکہ کو طویل جنگوں سے بچانا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کرا کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ، ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں امریکہ دنیا بھر میں امن قائم کرے۔ وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر قائم ہے، طاقت کے استعمال سے نہیں گھبراتے، لیکن جنگ کسی مسئلے کا آخری حل ہے۔ ایران پر حملے سے قبل امریکی انٹیلیجنس ہفتوں سے نگرانی کر رہی تھی۔ ایران کی جوہری صلاحیت مکمل ختم کر دی۔ پینٹاگون حکام نے تہران پر حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کن کہتے ہیں کہ فردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل 1000 فٹ سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی گہرائی میں گیا۔ تمام 6 میزائلوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حملے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت ڈیزائن ہتھیار استعمال کیے۔ فردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل حملے کے لیے سپر کمپیوٹر سے مدد لی گئی۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے کی پہلی ہی اطلاع مل چکی تھی۔ صدر ٹرمپ کی نگرانی میں الودیع ایئر بیس کو محفوظ بنایا گیا۔ ایران کے ایک کے بعد ایک میزائل حملے کو ناکام بنایا۔ یہ نہیں بتا سکتا حملہ ناکام بنانے کے لیے کتنے میزائل استعمال کیے۔ آپریشن مڈنائٹ ہیمر میں شامل فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی افواج نے انتہائی مہارت سے اپنا مشن مکمل کیا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ کے سب سے مشکل ترین فوجی آپریشن کا حکم دیا۔
मकसद खित्ते में जारी जंग का खात्मा था। ऑपरेशन के बाद ईरान और इसराइल की जंग बंदी हुई। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सदूर का ख्वाब ही हो सकता था। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ की ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया पर शदीद तनकीद। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। इसराइली खुफिया एजेंसी ने भी कहा कि तेहरान में हमले में काफ़ी नुकसान हुआ। IAEA ने भी तस्दीक की। ईरानी वजीर खारजा ने भी माना जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। तनकीद करने वाले नहीं चाहते सदर ट्रंप कामयाब हों, ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद करके अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का बातुल सियोनी रियासत फतह करने का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई का सीज फायर के बाद कौम से पहला खिताब। बोले अमेरिका में इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमारी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज का साथ दिया। हम पर हमला करने वाले हमारी तारीख से वाकिफ नहीं हैं। हथियार डालना हमारी लुगत में नहीं है। ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब वक्त आएगा ये कौम एक आवाज़ बनकर उभरेगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 17,573 अरब रुपए है। अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तमाम 78 तरमीम मुस्तरद। हुकूमत की तरफ से 2 बुनियादी और 2 ज़ैली तरमीम भी कसरत राय से मंजूर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वज़ीर ख़जाना की तरमीम भी मंजूर। 107 इदारों को टैक्स छूट। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन में टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट दे अमीर बादशाह डैम फंड्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के दौरान ईवान में मौजूद रहे। शहबाज शरीफ का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा। वज़ीर आज़म ने दोनों अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजट में तमाम मुतालबात माने जाने पर खुश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बजट को सपोर्ट करने पर खुशी है। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने इसलिए बजट की हिमायत की। BISP में भी 20% इजाफा कर दिया गया। सोलर पैनल्स पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। मुतालबात माने गए। उन्हीं की तजवीज़ के बाद अब FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बजट में 64% खसारा ज़राई शोबे को नजरअंदाज किया गया। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम दुरुस्त अंदाज में तकसीम नहीं होती। इस्लाहात लाकर बेहतर बजट पेश करना चाहिए था। असद कैसर का सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि फाटा और पाटा पर टैक्सेस खत्म किए जाएं, वहाँ अमन व अमान लाया जाए। आमिर डोगर बोले ये अवाम का नहीं IMF का बजट है। ज़रूरी आलात पर 18% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 800 cc गाड़ियों पर टैक्स क्यों लगाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। बानी PTI जिस दिन कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं 2 माह उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पूछते हैं कि आपकी हुकूमत है यहाँ, क्या आप नहीं मिलने दे रही हैं? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाबदेह हों और वो बानी PTI हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को खबरदार किया कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है और हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहूँगा मुलाकात नहीं चाहिए, बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली।
लगता है जिन 39 अरकान असम्बली ने सियासी वाबस्तगी पीटीआई जाहिर की वो ज्यादा अक्लमंद थी या फिर वो ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाले थे। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइनल करने में नाकाम हो वो आज़ाद तसव्वुर होगा। आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क सलमान अकरम राजा का 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद उठाए तमाम इक़दाम कलअदम किए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी सियासतदान को आज़ाद इलेक्शन लड़ने से कैसे रोक सकती है। जस्टिस मुसर्रत अलानी ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी निशान न मिलने से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होती। पीटीआई उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं थी। जस्टिस आशिम काकड़ ने कहा कि रूल 94 की मौजूदगी में आपके दलाल गैर ज़रूरी हैं। इसकी वजाहत आइन का हिस्सा रहे तो बाकी बातें गैर मुतल्लिका बन जाती हैं। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत अली-अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और बानी पीटीआई की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कमरे अदालत में हजूम होने पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दी, अगर यही पोजीशन है तो मैं केस नहीं सुन रहा। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? नए प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद ने तायुनाती का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, कल तायुनात हुआ हूँ, 4 हफ्ते के लिए केस मुलतवी किया जाए। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बरसते बादलों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल का जायजा, गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना, पानी की बरवक्त नकासी पर इत्मीनान का इज़हार। मरीम नवाज ने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके नेशनल स्पोर्ट कम्प्लेक्स में 8 माह में पानी की नकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर रखने की हिदायत कर दी। हंगामी हालात के पेश नज़र तमाम अजला की एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को इक़दाम की हिदायत। रेस्क्यू और दीगर इदारों को भी मशीनरी और अमले को तैयार रहने का कह दिया। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। पंजाब के नए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मौजूदा टैक्स ढांचा बरकरार। सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट टैक्स में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। बजट में 18 शोबों के नए मंसूबे शामिल। वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा ने 4 अहम बिल्स पेश कर दिए। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। चांद नजर आने का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। महकमा मौसमियात और स्पार्को हुकाम ने मुआवनत की। मुख्तलिफ मकामात से शहादतें मौसूल होने पर चांद नजर आने का ऐलान किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए इस्लामी साल के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पैमरा को वाज़ेह सिफारिशात अरसाल की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजलास। मुल्क भर में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। हुकाम को अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए। तमाम ज़रूरी इक़दाम और फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे।